नेक्स्ट वन आपका सर्विस स्टैंडर्ड्स फॉर रिटेल बैंकिंग, सर्विस स्टैंडर्ड फॉर रिटेल बैंकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे वी हैव टू, दिस इज द फाइनल मॉड्यूल ऑफ योर, फाइनल यूनिट ऑफ योर मॉड्यूल सी, ठीक है। सो यहाँ पे जो मेजर आपका है, ठीक है, BSSBI, ठीक है। देन वी हैव आपका कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट्स, फंक्शंस, ठीक है। एंड हाँ, तो दीज 2-3 थिंग्स विच आर like basically आपको overall if you study the books so you'll see these particular things which are part of your books, ठीक है। So banking code and standard board of India, BCSBI it is known as, ठीक है। So यहाँ से मतलब, और इस जो code of conducts आपके हैं they are generally part of this one, ठीक है। So banking code and standard board of India, November 2003, RBI has constituted a committee on procedures and performance audit of public services under the chairmanship of Sri S.S. Taraport, former governor of deputy governors of RBI. The main objective of committee was to address the issues relating to availability of adequate banking services to common people. As the annual report of RBI 25th 2020, Reserve Bank of India decided to dissolve the BCSBI. ठीक है, अभी आपका ये नहीं काम करता, बट हाँ it मतलब कहीं ना कहीं for the overall inclusion and all we created this one. What were the objectives of BCSBI? Develop and promote voluntary code and standards for banks to ensure fair treatment of the customers. Act as an independent watchdog to ensure bank अदर टू दीज कोड, इवन आपका इसमें बेंचमार्किंग भी होती थी, ठीक है। मतलब वी यूज टू रेट बैंक ऑल्सो, कौन सा बैंक इज गुड इन विच एस्पेक्ट एंड ऑल, ठीक है। देयर इज वन पैरामीटर्स ऑल्सो, विल टॉक अबाउट दैट वन, ठीक है। कंडक्ट रिसर्च ऑन कोड एंड स्टैंडर्ड्स in India and globally, work with bank to ensure compliances and train employees on banking codes, ठीक है। So these were some major objectives of your आपका BCSBI, ठीक है। So other objectives आपका, these are generally in your book, these are generally categorized as main objectives and these are categorized as other objectives, ठीक है। So publicize and promote awareness of the code through the media and advertisement, undertake assignment or project related to implementing the code with in-house or external support, organizing training program, conferences, seminar and other educational event, publish literature such as journal, report and research, collaborate with institutions like Indian Bank Association and other similar organization, initiate partnership and joint efforts with the other nationals and international institutions, set up and manage facilities like offices, libraries, आपका computer centers to support these objectives and all, ठीक है। So main objectives and आपका other objectives, ठीक है, BCSBI. Then आपका, sorry it's a repeat one, हाँ, ठीक है। हाँ इट इज, हाँ, टू कोड वर डेवलप, ये थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। BCSBI फंक्शन इंडिपेंडेंटली टू मॉनिटर द इंश्योर द एडहेरेंस टू द दिस, ठीक है। हाँ, सो आपका कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर्स एंड कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है। सो BCSBI दे जनरली कम अप विद टू कोड, वन इज अराउंड द कस्टमर्स आपका, अनदर वन इज अराउंड द आपका माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है। ये पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे इन सबका आप लोग, ठीक है। सो कोड ऑफ बैंकिंग कमिटमेंट टू कस्टमर्स वाज रिलीज्ड बाय डॉक्टर YV Reddy, गवर्नर RBI in 2006. The code has been revised in 2009, in 2014 and again in January 18 to order a greater transparency. The code of customer right, which set minimum standard of banking practices member bank have to follow while they deal with the individual customers and all, ठीक है। So code of bank commitments आपका objective of these particular code, what are the core objective of these particular one? Promote good and fair banking practices by setting minimum standard in member banks dealing with the customers, increase transparency so that customers can have a better understanding of what they can reasonably expect from the member banks, encourage market forces through a competition to achieve higher operating standards,
promote fair and cordial relationship between a customer and their banks, foster confidence in banking system, promote safe and fair customer dealings in case of banking in digitized environment, increase awareness कस्टमर्स एंड एनहेंस कस्टमर प्रोटेक्शंस। ठीक है, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट्स आपका वी विल बी प्रैक्टिसिंग थ्रू द क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, बट यू हैव टू रिमेंबर दीज पर्टिकुलर वन। ठीक है, सो एक बार ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोड आपका क्यों, व्हाट वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव व्हाट वी वांट टू अचीव थ्रू बीसी एसबीआई कोड एंड ऑल। कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो अभी हमारे जो थे प्रीवियस वन दे वर रिलेटेड टू द आपका इंडिविजुअल कस्टमर्स। इफ इट कम्स टू द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है, so BCSBI introduced the code of bank commitment to micro, small and medium enterprises in 2004 8 आपका, that was in 2006 I guess, ठीक है, 2000 हाँ it was in 2006 आपका, and these were the code and for आपका MSC आपका micro and small enterprises in 2008 the code established minimum banking practices standard for dealing with the micro, small and medium enterprises under the MSED Act 2006. Code was revised in this objective: facilitate MSC's access to efficient banking services, promote fair banking practices by setting standard for MSC interactions, enhance transparency for MSC's understanding the expected services। ठीक है, so these are the areas। so ये थोड़ा सा important है, कोड फॉर इंडिविजुअल्स और द कैटेगरीज एंड ऑल। ठीक है, तो थोड़ा सा वो कैटेगरी आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, विच इज पार्ट और नॉट पार्ट वाला जो एरिया होता है दैट कैन बी आस्क्ड आपका। ठीक है, मेजर फंक्शन ऑफ CEPD दैट इज कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेवरल की फंक्शंस। ठीक है, administrating banking ombudsman scheme, serving as a nodal department for the erstwhile BCSBI, ठीक है, so which is generally आपका CEPD, overseeing the code आपका code of banking commitment to customer and code of commitment to micro small enterprises created in collaboration with IBA and minimum banking standards and all। ठीक है, so basically आपका ये जो जितने भी जो कोड्स हमने डिस्कस किए बोथ द एरियाज आपका वो इंडिविजुअल के लिए हो, कस्टमर्स के लिए या फिर आपके एमएससीज के लिए, ठीक है, इनका पालन हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है, दीज आर फॉलोड बाय द बैंक्स और नॉट, फॉर दैट सेक वी हैव कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट्स। ठीक है, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर वन। ठीक है, all the three existing ombudsman scheme, so this we have earlier also discussed। ठीक है, so yes, ombudsman scheme we have discussed earlier also। ठीक है, this ये गलती से यहाँ पे आ गया, the code of bank commitment to customer, a duly signed a written memo with the reason for the written will be provided by the bank in case of check deposited by you for collection is written unpaid. A customer will receive a notice 30 days if his account is being closed by the bank under normal circumstances. The purpose of the nomination facility for deposit accounts to be designate someone to receive account process after the customer death. Bank are required to collect the 10-digit alphanumeric code of the customers। ठीक है, IFSC और आपका नहीं नॉट IFSC, क्या है आपका रिक्वायरमेंट टू कलेक्ट 10-digit alphanumeric SSC कोड आपका। ठीक है, फॉर दिस वन। ठीक है, सो दिस SSC कोड आपका एंड विच इज हाउ मेनी डिजिट आपका 10 डिजिट। तो बेसिक आपका जो कोड्स है, ठीक है, कोड ऑफ बैंकिंग कमिटमेंट टू कस्टमर्स, ठीक है, विच इंक्लूड और ट्रू और रॉन्ग फॉल्स आपका प्लीज ध्यान रखिएगा। दिस इज द पैरामीटर आई वाज टेलिंग। ठीक है, तो जिसके बेसिस पे वी जनरली थ्रू दिस डेवलप बाय BCSBI इटसेल्फ, ठीक है, एंड वी वर बेसिकली रेटिंग बैंक्स आपका कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन एवरेज परफॉर्म कर रहा है। ये बहुत बार पूछा जाता है तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे। सो पैरामीटर वेटेज आपका इंफॉर्मेशन डिसमेंटेशंस 20। ठीक है, बेसिकली दीज आर द पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ वी विल बेसिकली रेट ऑफ बैंक। ठीक है, टूल्स आपका ट्रांसपेरेंसी 22 मार्क्स वेटेज, ठीक है, ओवरऑल 100 मार्क्स। कस्टमर सेंट्रिसिटी आपका 30 मार्क्स, ग्रीवेंस रिड्रेसल 15 एंड कस्टमर फीडबैक आपका 13। ठीक है, सो ओवरऑल 100 पॉइंट्स। नाउ scoring scale is आपका, let's say if a bank is achieving their overall score is आपका 85 and above, so high, 70 to 85 आपका average, आपका 60 to less than that average,
अबव एवरेज एंड एवरेज, आपका बिलो 60 बिलो एवरेज, ठीक है। तो दीज आर द कैटेगरीज ऑल्सो। तो जहाँ पे व्हाट वी, तो ऐसी चीजें ना बहुत ज्यादा टेस्ट होती है, सो प्लीज इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो पैरामीटर वेटेज आपका, दीज आर द पैरामीटर्स, कौन सा पैरामीटर है नहीं है ये भी ध्यान रखना है। दूसरा आपका द रेटिंग्स आपका, तो वो आपको एक सिचुएशन बना करके दे सकता है, ठीक है, कि बेस्ड ऑन दीज पर्टिकुलर पैरामीटर दिस इज द ओवरऑल स्कोर ऑफ अ बैंक, ठीक है। सो नाउ आपका यू हैव टू डू द स्कोरिंग एंड दिस बैंक फॉल अंडर विच कैटेगरी एंड ऑल, वो दोनों चीजें जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है एप्लीकेशन वाइज, ठीक है। Next one, guys. Objective of BCSBI is basically, what are the core objectives? आपका promote good and fair banking practices, enhance customer protection and awareness, increase transparency in dealing with customers, monitor and ensure that banking codes and standards are adhered to, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपका, these are the core objectives which generally comes under this particular one, ठीक है। यूनिट नंबर 21, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आर यूनिट नंबर 21। व्हेन इट कम्स टू द यूनिट नंबर 21, सर्विस स्टैंडर्ड मींस, याद है BCSBI, मॉर्निंग इटसेल्फ वी डिस्कस अराउंड दिस। तो आपका BCSBI मेन एंड एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट्स, आपका कोड ऑफ फॉर इंडिविजुअल एज वेल एज आपका MSCs, ठीक है। फंक्शन है आपका, इसके अलावा कस्टमर ग्रीवेंसेस हैंडलिंग मैकेनिज्म है, ठीक है। तो दीज आर द एरियाज विच आर जनरली पार्ट ऑफ दिस वन। चलो स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन को विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। So which of the following statement regarding BCSBI are correct? So you have to find out the correct statement about the BCSBI. तो क्या होगा correct answer? BCSBI established based on recommendations of Sri SS Tarapur Committee in 2006. The primary objective of BCSBI is to provide grievances redressal forum for the individual customers. ठीक है, ये देखो, ये जो आपका स्टेटमेंट है ना, इट वाज आपका बेसिकली, इट वाज नॉट अ ग्रीवेंस रिड्रेसल, ये आपका बैंकिंग सिस्टम के लिए कोड ऑफ कंडक्ट कि हाउ वी शुड इंटरेक्ट विद द कस्टमर्स। आपका टू टाइप ऑफ कोड, वन इज इंडिविजुअल, अनदर वन इज आपका MSC, ठीक है। तो आई विल नॉट गो विद दिस ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड ऑल, ठीक है। सो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग आपका, ठीक है। नेक्स्ट वन, BCSBI formulated a voluntary codes for bank to ensure fair treatment of the customer, बिल्कुल सही है। कोड replace the regulatory guidelines issued by RBI, नहीं, आपका statement 4 is आपका प्योर मतलब 100% wrong है statement 4, it cannot replace RBI guidelines. RBI decide to dissolve BCSBI as per the annual report, thus आपका true, ठीक है। तो 135 मीन्स ऑप्शन ए ओनली शुड बी राइट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। तो इसको डिसॉल्व कर दिया गया था, जिससे हमने मॉर्निंग में भी इसके अराउंड आपका डिस्कशन किया हुआ था, ठीक है। सो ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन। नेक्स्ट वन, आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ BCSBI आर करेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ BCSBI आर करेक्ट, क्या होगा आंसर? सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ BCSBI एंड आपका करेक्ट, ठीक है। सो मेन ऑब्जेक्टिव्स, और दो कैटेगरीज में हमने पढ़े थे ना, दो ज्यादा एरियाज। सो BCSBI एम टू डेवलप आपका, जस्ट अ मिनट, हाँ मस्की व्हाट हैपेंड? So BCSBI aim to develop and promote voluntary code and standard to for fair treatment of bank customers, पहला एकदम करेक्ट है, ठीक है। सेकंड वन, BCSBI has the authority to impose penalties, no, आपका there is no authorities regarding the penalties and all. BCSBI conduct research on banking codes and standard both within and outside India, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका, BCSBI entered into a convent with bank for observance and training on banking codes, आपका, ठीक है। This is also correct, ठीक है। BCSBI also undertake promotional and awareness activities for public knowledge through this one, ठीक है। तो 1345 means option C should be right answer for this one, ठीक है। option C should be right answer. I'll go with option C. Guys, क्या होगा आंसर? भूल गए क्या? सुबह हमने डिस्कस किया था ना, तो आई गेस ये सारे कोड हमने जितने यहाँ पे अभी तक का कंटेंट आया ना, सब हमने मॉर्निंग में गो थ्रू किया था। तो जैसे अभी होता है ना, जब भी हम लोग ऐसे आपका यूनिट वाइज प्रैक्टिस या जैसे रिविजन भी जब भी करें, तो एक बार उनको आपका गो थ्रू कर लिया करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट
कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर्स, ठीक है। सो कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर्स और कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू एमएससीज, देयर आर टू टाइप ऑफ कोड आपका जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया था। कम कम हियर, आओ जरा जाओ, चलो आ जाओ इसको। तो क्या होगा करेक्ट आंसर गाइस? द कोड वाज फर्स्ट रिलीज बाय डॉक्टर वाई रेड्डी इन 2006, ठीक है, सही था। It has been revised 2009, 2014, 2018 to improve transparency and customer services आपका, ठीक है। This statement is wrong ना, ये सिर्फ एक ही बार रिवाइज हुई थी 2000 स्टेटमेंट आपका, दिस स्टेटमेंट आपका रिवाइज वाला पोर्शन, anyone who remember this one, because I'm not getting this one, ठीक है, I'll not mark this one, चलो। The code represent minimum standard of banking practices that member bank must follow, ठीक है। Okay, let's go. ठीक है, नेक्स्ट वन आपका गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका, The code apply only to deposit and loan account offered by the bank आपका statement 4, ठीक है। It is statement 4 आपका करेक्ट है, statement 4। So it is आपका statement 4, it should be incorrect आपका because it applies to all product आपका, it should be all products आपका, ठीक है, not only a limited areas and all, ठीक है। Member banks may voluntarily adopt these particular one, ठीक है, code that higher than those mandatory by the RBI, ठीक है। Member banks may voluntarily adopt standards in the code that are higher than those mandated by the RBI, ठीक है। Statement 5 seems correct, ठीक है। 6 आपका code promote fair banking practices, transparency and customer protection in the digital and traditional banking, this is also correct, ठीक है। Anyone who want to answer this particular one, ठीक है, ठीक है, इज दिस क्लियर ना, करेक्ट है, चलो हाँ। व्हाट इज द राइट आंसर? डी इज द राइट आंसर, एक बार देख लेते हैं आपका, हाँ दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो करेक्ट आपका, ठीक है। स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट गाइस, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन आपका करेक्ट रिगार्डिंग दी कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टुवर्ड एमएससी, ठीक है। सो कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टुवर्ड एमएससी आपका बीसीएसबीआई, ठीक है। ये देखो हमारे गौरव सर, ये देखो ये गौरव सर हैं, तो ये गरिमा अग्रवाल के नाम से आते हैं एंड ये पढ़ाते हैं कहाँ पे? खान एकेडमी के अंदर, ठीक है। अब इनकी सारी आइडेंटिटी रिवील कर देते हैं, ये नोएडा में रहते हैं, इनके घर का एड्रेस भी बताना पड़ेगा अभी लग रहा है सबको, ठीक है। करेक्ट है दोस्तों, ये हाँ देखो ऐसे दोस्त ना पब्लिकली जो आते हैं तो इनको पब्लिकली जलील करना चाहिए, करेक्ट है। चलो द कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बाय BCSBI, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट आपका, ठीक है। चलो बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर गाइज, व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन? So the code was first introduced in May 2008 and revised in 2015. पहला statement is correct here. The code is applicable only to manufacturing enterprise, exclude service enterprise. No, it is आपका जो MSME Act के अंदर जितने भी आपके institutions आते हैं, they generally comes under that particular one. देखो अभी मालिक पे आ गए सब, ठीक है। Code aim to increase transparency and ensure MSCs understand what service to be expected, ठीक है। One of the objective of code is to promote cordial and fair relationship between MSCs and आपका member banks, ठीक है। So statement 4 is also correct, ठीक है। एंड गौरव सर ने अगर ज्यादा दिक्कत करी ना, मैं इनके बैंक अकाउंट नंबर बताऊंगा आपको, जिस भी बैंक में इनका अकाउंट है ब्लॉक कर देना इनको, ठीक है। इन ऑपरेटिव में डाल देना, ठीक है, बहुत पैसा है इनके पास, सब बंद करा देना इनका। अगली बार से फिर ये कहीं नहीं आएंगे, फिर अगली बार से वैसे आएंगे कि अकाउंट ओपन करवा दो हमारा करके। चलो नेक्स्ट वन गाइस, स्टेटमेंट 5 आपका कोड अप्लाई ओनली टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड एट बैंक ब्रांचेस एंड एक्सक्लूड ऑनलाइन सर्विसेज आपका, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड ऑनलाइन सर्विसेज ऑल्सो, ठीक है। प्रोडक्ट कवर्ड अंडर द कोड इंक्लूड डिपॉजिट,
loan, foreign exchange, and merchant services too. The code foster a confidence in banking system and promote this one also. ठीक है? So 13467. 13467 means option A only should be right answer for this particular question. ठीक है? So option A will be correct answer for this particular question. ठीक है दोस्तों? चलो next question on your screen. Quickly go through the question and आपका आंसर दिस वन. ठीक है? सो देखो BCSBI के ऊपर जब भी क्वेश्चन होगा ना, फॉर श्योर दैट विल बी फॉर 2 मार्क्स. एंड जो स्टेटमेंट बेस्ड आपका, ठीक है, दैट विल बी ऑलवेज आपका. जब भी ये क्वेश्चन पूछा गया ना, हाफ मार्क्स के अंदर जो मतलब इसके जो स्टेटमेंट भी होते हैं ना, दे आर लाइक ईयर्स रिलेटेड, एक्ट रिलेटेड एंड ऑल. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अराउंड दोज पर्टिकुलर वन. ठीक है? बिल्कुल भी वहां पे चांस नहीं लेना है. अच्छे से इनको आपको याद रखना है. ठीक है? जो आपको हेल्प करेगा. ठीक है दोस्तों? चलो नेक्स्ट वन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन. वी आर एट सेकेंड लास्ट यूनिट आपका फ्रॉम योर मॉड्यूल सी इटसेल्फ. ठीक है? देन कल मॉड्यूल डी करेंगे आपका. डी एंड ई एडिशनल रीडिंग मटेरियल जो है ना आपका, दैट इज ई, और आप उसको डी या ई कुछ भी मानो, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट आई पर्सनली फील कि जिस तरीके से इस बार वो पेपर बना रहा है, तो देयर कैन बी सम केस स्टडीज. तो व्हाट आई एम प्लानिंग कि जैसे टुडे इज आपका हमारे पास विल बी कवरिंग बाय आपका फ्राइडे सब कुछ खत्म हो जाएगा. सैटरडे को महामैराथन होगा, उससे पहले एक न्यूमेरिकल्स या जो केस स्टडीज के अराउंड जो सेशन होगा ना, वो हमें आपका एक प्लान कर लेंगे. ठीक है? तो जिससे कोई भी ऐसा टेंशन ना आए. ठीक है? चलो. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोड कंप्लायंसेस रेटिंग सिस्टम बाय BCSBI. हमने पढ़ा था ना आपका डिफरेंट डिफरेंट एरियाज और रेंज हमने जो डिस्कस किए थे, तो ये उन्हीं से रिलेटेड आपका पोर्शन है. ठीक है? सो लास्ट में हमने आज डिस्कस किया था इसको. सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका, द कोड कंप्लायंस. So we have to find out incorrect statement, huh? So the code compliance rating by BCSBI is calculated by assessing equal weightage to all parameters. No, we have different weightages. ठीक है? हमने सबके लिए आपका different weightage आपका दिया था. ठीक है? तो कहीं पे आपका 22 था, कहीं पे 18 था. So that is the one. And please do remember that particular one also. जैसे इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, ठीक है, आपका ट्रांसपेरेंसी, कस्टमर सेंट्रिसिटी, ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड कस्टमर फीडबैक्स. तो फॉर ऑल द पैरामीटर्स वी हैव डिफरेंट आपका ओवरऑल स्कोरिंग. ठीक है? ओवरऑल 100 आपका. तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग. एंड प्लीज डू रिमेंबर दिस वन ऑल्सो. ये क्या सीक्वेंस है उसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है? एग्जामिनेशन के लिए जस्ट बिफोर एंटरिंग योर एग्जामिनेशन हॉल जस्ट हैव अ लुक अराउंड दैट पर्टिकुलर वन. ठीक है? नेक्स्ट वन आपका BCSBI कोड कंप्लायंस रेटिंग methodology involve feedback collection only from the bank corporate customers. No, it is आपका all customers. ठीक है? This is also wrong. ठीक है? Scoring scale for code compliance ratings assign high ratings to a bank that score 75 and above. ठीक है? And above average is आपका 60 to less 60. Above average is आपका rating to bank scoring between 60 to less than 75 and it is high. no यहाँ पे हमारे पास ना we have 4 आपका. ठीक है? जो कैटेगरीज आपकी थी वो भी आपका डिफरेंट थी. ठीक है? जो जितना मेरे को याद है. ठीक है? और जो हाईएस्ट वाला था दैट वाज क्या था, स्कोर आपका 85. ठीक है? ये अगर हम हाई रेटिंग की भी जाते हैं ना, तो ये भी आपका कितना था, 85 था. ठीक है? और देयर आर 4 कैटेगरीज, 3 और 4 कैटेगरीज. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ठीक है? BCSBI authorized representatives carry out surveys of branches and CPC of major banks in both semi-urban and urban locations for compliances verification using a structured questionnaires as the sole data collections method. No, this is आपका urban and local for the compliance verification using a structured questionnaires. Okay, statement 4 is also look wrongs ना आपका, ये होना चाहिए. ठीक है? मतलब there are variety of ways to gather that data. ठीक है? The final code compliance ratings is based on the detailed analysis of the numerical scores derived from the customer feedback, data collected during the branch visit and technical assistant from the CRISIL आपका. ठीक है? Only statement correct is आपका 5. तो हमें अच्छा वी हैव टू फाइंड आउट इनकरेक्ट. तो 1 2 3 4. ठीक है? 1 2 3 4 मीन्स हाँ ऑप्शन सी शुड बी राइट आंसर देन. ठीक है? स्टेटमेंट 5 इज 100% करेक्ट, बट इससे पहले वाला एनीवन? यस, हाँ, सी. एवरीबडी इज सेइंग ऑप्शन सी शुड बी राइट आंसर फॉर दिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ,
फॉर श्योर यू गाइज आर गोइंग टू फेस क्वेश्चन अराउंड दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी लोग आपका, जैसे इट इज आपका 20 फॉर इंफॉर्मेशन डिससेमिनेशन, 22 आपका 22 ट्रांसपेरेंसी, 30 आपका कस्टमर सेंट्रिसिटी, सबसे ये भी ऐसा भी पूछ सकता है मैक्सिमम किसको दिया गया, लीस्ट किसको दिया गया, बी प्रिपेयर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो, 15 आपका ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड 13 आपका कस्टमर फीडबैक्स, ठीक है। सो दीज आर द 5 पैरामीटर्स, ओवरऑल 100 आपका और उनके बेसिस पे द फीडबैक इज कलेक्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल कस्टमर एज वेल, ठीक है, और आप इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट एंड बोथ, ठीक है। सो नेक्स्ट वन आपका स्टेटमेंट 3, द रेटिंग स्केल आप असाइन हाई फॉर स्कोर 85, हाँ देखो हाई के लिए आपका मैक्सिमम वी हैव 85, ठीक है, एंड अबव, ठीक है, एंड अबव एवरेज इज आपका 70 लेस देन 85, ठीक है। देयर वाज 3 और 4 आपका जो भी कैटेगरीज थे, ठीक है। स्टेटमेंट 4 इज इनकरेक्ट, डेटा कलेक्शन इंक्लूड नॉट जस्ट स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर बट आल्सो कस्टमर फीडबैक्स which play a significant role आपका, ठीक है। So these are the areas which were generally part of this particular. चलो next question guys. Next question on your screen. So which of the following statement about the customer grievances handling mechanism are true, ठीक है। Customer grievance handling mechanism are true, ठीक है। The bank will display the name of the official at the branch whom customer may approach, 100% true, ठीक है। If the complaint is unresolved at the branch level, the bank must resolve it within 15 days आपका, ठीक है। So it is not 15 days, ये यहाँ पे टाइम बाउंड इज हाउ मच आपका 30 डेज, ठीक है, 30 डेज, तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। बैंक विल प्रोवाइड अ कंप्लेंट रेफरेंस नंबर इफ कंप्लेंट इज मेड ओवर द टेलीफोन्स और ईमेल आल्सो, ठीक है, ट्रू है ऑनलाइन के थ्रू भी। इफ अ कंप्लेंट इज नॉट एड्रेस विद इन 30 days, द कस्टमर कैन अप्रोच टू ऑम्बड्समैन, ट्रू। बैंक इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द कंप्लेंट रेड्रेसल प्रोसीजर इफ द कस्टमर इज डिससेटिस्फाइड विद द कस्टमर्स, आपका आउटकम्स आपका, ठीक है। 1345 मीन्स आपका ऑप्शन ए ओनली शुड बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। ए होगा ना दोस्तों का आंसर आपका, ठीक है, इसमें कोई ऐसा टेंशन वाला चीज नहीं है, आसान था, ठीक है। नेक्स्ट वन, कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, इसके अराउंड भी हमने बात किया था मॉर्निंग में, ठीक है। सो कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट एंड आपका आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, ठीक है। सो दोनों से रिलेटेड स्टेटमेंट यू हैव गिवन आपका 6 स्टेटमेंट एंड यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट वन, ठीक है। हमें करेक्ट ढूंढना है ना इसमें, हाँ ट्रू स्टेटमेंट आपका ढूंढना है। तो पहला, कस्टमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट एडमिनिस्टर द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006 आपका, ठीक है, पहले ही करेक्ट था, ठीक है। इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 21 कंबाइन 3 सेपरेट ओम्बड्समैन स्कीम आपका, बैंकिंग ओम्बड्समैन 2006, एनबीएफसी आपका 18 एंड आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन 19, ठीक है, उनको हमने बना करके वन नेशन वन ओम्बड्समैन बनाया, दिस इज करेक्ट आपका, ठीक है। सीपीडी एक्ट एज अ नोडल डिपार्टमेंट फॉर द ईस्ट वेल्स BSSBI, ठीक है। तो स्टेटमेंट 3 आपका इट इज अगेन 100% ट्रू, यहीं पे हमने इसको डिस्कस भी किया था, ठीक है। अंडर द इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम कंप्लेंट मस्ट आइडेंटिफाई which scheme is filed there, sorry, under the integrated ombudsman scheme, complainant must identify which scheme to, no it is a single scheme, तो यहाँ पे ऐसा कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका, the regulated entity has the right to appeal if an award is issued by the ombudsman against it for not providing timely information आपका, ठीक है। स्टेटमेंट 5 दिस इज आपका रॉन्ग ना, ठीक है, इट इज अबाउट द कस्टमर्स, तो इट शुड बी रॉन्ग आपका, ठीक है। I'll cross check this one. The scheme defined a deficiency in service with a list of exclusion, making sure complaints are not rejected simply for the not being covered, ठीक है। तो 1 2 3 6 1 2 3 6, yes, option D should be right answer for this particular one, correct है दोस्तों।